Okay, so welcome to Android Applications Development. We are VMDD Technologies and we are working on the following technologies. We are working on information security, Android applications development, cloud computing and IPv6 technology, and embedded systems development. Okay, so we are core developers for software as well as for hardware. Okay, we will be doing some solutions and we will have one session in which we will be dealing with Android hardware and the Android software. We will be booting that Android operating system onto that hardware also, so that you will get a clear insight how Android works, okay? How Android operates the devices and how your application can run on JVM and can send instructions to the hardware and the hardware will start working, okay? IT industry में जो भी software develop होता है, though you develop softwares, but softwares operate hardwares in order to return some output, okay? जो आउटपुट आपको रिटर्न करता है हार्डवेयर, उसके थ्रू आप यूजर को सेटिस्फाई करते हैं, उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ओके, लेट्स प्रोसीड. देखते हैं कि कैसे हम ये काम करेंगे. ओके, moreover I would like to tell you one important thing. Authorization certificates of VMDD Technologies. We are ISO 9001 2008 certified. We are registered with IIT Delhi. We are registered with DRDO. These are the certification numbers through which we are connected to. We are registered with Intel for software and hardware security. I am registered to Microsoft certified partner for training on Windows 8 applications and cloud computing. Windows is your platform के ऊपर. I provide training to them. And I am registered with Cisco. We provide CCNA, CCNP, CCNA voice, CCNA security courses also. Let's proceed further. The more important thing is who am I and why I am here to discuss Android operating system and Android applications development to you. I am not one of these. I am not a professor anywhere in a university. I am not a lecturer, not a teacher, not a hacker. I am working as a project manager here in VMDD Technologies. I deal with DRDO and government organizations. Yes, this is a photograph which is gifted to me by a student of mine. The very first when I have started development and started providing trainings on these development concepts. So there was a student, two students were there actually. One was Vinayak Varma and other was Sahil Pawar. There were two students. They gifted me this particular photograph. So from that day I am using this photograph. It looks very cool. So my current projects are, I am working on Sony's Mobile Workforce Manager project. They have an Android workforce management system. So I am working on many more technologies. I am here introducing you my projects on Android which I am working on. Okay. So we are working on this SMS Mobile Workforce Manager. It is totally an internet operated application in which all the service providers and all the service agents which are in the field, they are operated by a central manager sitting in his office using his mobile phone. So every person has an Android mobile phone, they have their application installed in it. He allots the tasks to them, the tasks are allotted to the machines. All the data related to the customer, related to what is the problem, the signature panel, at what time the problem has been solved, at what time the user has accepted that the yes, my problem has been solved. उसका एक पूरा application बनाया हुआ है और वो internet based है. Okay. I'll introduce you to one session in which we will be creating a authentication application kind of a thing. Okay. In which you will provide user a password onto a mobile phone. The user and password will go to a server which will be created by you. आप बनाएंगे उस server को, वहाँ पे authentication होगी and a true or false response will be returned to the mobile application. Okay. So if the web server authenticates your user, you will be granted access to the application or to the resources. If he denies it, you won't get access to it. Okay. Since it is an internet-based authentication system, with any of this hacking technology, you may not be able to bypass that application also. Okay. उसको application को bypass करने का कोई situation नहीं है, क्योंकि जो भी resources allotted होंगे, they will be allotted by the server itself. Okay. So if the server denies your access at his end, he will not allot any resources to you. Okay. So we will have that kind of an application also. We will be using some composite controls and the connectivity with the internet. One more thing you can do in form of a project, using that particular concept, you can create a student management system or a timetable management system in which you are interested. वो आप online बना सकते हो, ठीक है? User will log in into your RDIS application, username password provide करेगा. RDIS के server के through it will communicate and all the data will be allotted to every student's mobile. Okay?
उनका अटेंडेंस करेगा, ठीक है, हर क्लास में उसकी कितनी अटेंडेंस है और अभी कितनी और बाकी है अटेंडेंस, कितनी क्लासेस अभी वो मिस कर सकता है ताकि वो मेंटेन कर सके अपना परसेंटेज, और कितनी अगर एक बची है 2 बची है तो वो आपको प्रॉपर्ली बता देगा कि यार अब मत करो नहीं तो यू विल बी डिटेन्ड फ्रॉम दैट लिस्ट। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर दैट मैनेजमेंट आल्सो एंड फॉर यू गाइस आल्सो। ओके, एक और इसी के साथ में आप फीचर बना सकते हैं, एट द क्लास व्हेन द टीचर इज इन द क्लास शी विल कनेक्ट योर फोन टू द नेट, शी विल मार्क योर अटेंडेंस ऑन द फोन, as soon as she will press submit, it will be updated on your central server and the attendance will be allotted to everybody's mobile. So there may be a proper verification check also कि हाँ जितने लोग अटेंड कर रहे हैं उन्हीं की प्रॉपर अटेंडेंस लग रही है, प्रॉक्सीज का भी कोई इशू नहीं है, एंड एवरी स्टूडेंट विल आल्सो बी इन्फॉर्म्ड कि यार हाँ कि मुझे 4 क्लासेस हैं, 10 क्लासेस हैं जो मैं मिस कर सकता हूँ, किस सब्जेक्ट में कितनी क्लासेस में कर चुका हूँ और कितनी बची हुई है जो मुझे करनी पड़ेगी, तो उसमें यू कैन सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि कॉलेज में अटेंडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, अटेंडेंस, मार्क्स और ये सारी चीज़ें, किसके जीपी में क्या है, कौन से असाइनमेंट्स कब मिले हुए हैं, उस असाइनमेंट के कितने मार्क्स हैं, क्या सबमिशन की डेट है, एवरीबडी विल बी इन्फॉर्म्ड। ओके, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, बच्चा कॉलेज नहीं आया, नहीं मिली, बट क्या है कि अब वो लॉग इन करेगा अगर मोबाइल फोन में, ही विल बी इन्फॉर्म्ड विद दैट एप्लीकेशन। तो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, बट यू कैन come up with a good solution. After this training you will be able to develop that product. ठीक है, तो मैं फोकस करूंगा, we will be moving on to that direction. उन कंट्रोल्स को मैं यूटिलाइज करूंगा जिसके थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट सिनेरियो कर सकते। ठीक है, पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, अप्रोचेस क्लियर करेंगे, बेसिक एप्लीकेशन बनाएंगे 4-5, और उसके बाद में then we will proceed to a custom solution जिसके अंदर हमारी सारी चीजें हो जाएंगी। We will be doing parallelism, we will be doing networking part, we will be using composite controls in which we can go for better designing of applications. Okay, तो इस बात पे हम प्रोसीड करेंगे। पहला हफ्ता हमारा बिगिनर हफ्ता होगा जिसमें हम अप्रोचेस क्लियर करेंगे, और दूसरा हफ्ता हमारा एडवांस हफ्ता होगा जिसमें हम पहले 3 दिन में अपनी लॉगिन एप्लीकेशन बनाएंगे और आखिरी के 2 दिन में हैकिंग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So this is the approach which I am going to follow. You all are small cats, I'm the big cat. ठीक है, तो मैं आप लोगों को डरा धमका के सिखाऊंगा क्योंकि डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यू हैव टू बी पंक्चुअल ऑन टाइम। मैं लेट आता हूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को टाइम से आना है। ठीक है, मैं लेट हो सकता हूँ, और दूसरी चीज़ है कि मतलब डिसिप्लिन वे में वट एवर वीडियोज विल बी प्रोवाइडेड टू यू, यू हैव टू रीड दोज अगेन एट होम। एक बार जाके जरूर पढ़नी है, और जो भी टास्क आपको अलॉट किए जाएंगे, इनफैक्ट अगर अलॉट किए जाते हैं तो आपको उसी दिन में कंप्लीट करके you have to submit on the online portal। मैं बना रखा है, आपको उसका लिंक बता दूंगा कि कहाँ पे आपको अपलोड करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द बेसिक्स और दिस इज द प्रोग्राम स्ट्रक्चर विच वी विल बी डूइंग। ओके, सबसे पहले हम एंड्रॉइड की बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद में 3 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं, जावा अप्रोच, XML अप्रोच एंड हाइब्रिड अप्रोच। ये तीनों अप्रोचेस हम पढ़ेंगे। आपको जावा आती है बेसिक्स, कितने लोगों को आती है? सभी लोगों को आती है। ठीक है, थोड़ी बहुत जावा आती है तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी आती होगी तो मैं आपको वी विल गो टू अ स्ट्रक्चर, कुछ अवेयरनेस चेक मैं आपसे करूंगा आज। देखता हूँ जानना चाहता हूँ कि बेसिक्स आपने कितने क्लियर है। ठीक है, क्योंकि बिना आपको बड़ी क्लासेस आती हैं कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं है। बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल गो टू XML अप्रोच, जिसके अंदर हम एक विजुअल लेआउट एडिटर का यूज करेंगे। जनरली लोगों को XML नहीं आती है। ठीक है, XML में क्योंकि कस्टमाइज टैग्स होते हैं, आगे कितने टैग्स याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम XML सीखने के बजाय हम ये देखेंगे कि हाउ कंप्यूटर कैन हेल्प अस इन क्रिएशन ऑफ दिस XML। सो वी विल बी यूजिंग द लेआउट एडिटर। लेआउट के थ्रू हम कंट्रोल्स ड्रॉप करेंगे एंड द XML कोडिंग विल बी ऑटोमेटिकली डन एट द बैक एंड। ओके, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि XML क्यों यूज होती है और क्या उसका काम है, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। Then we will go to hybrid based applications development, जिसमें हम XML और प्लस जावा दोनों के कोड को कंपाइल करेंगे और कोडिंग करना शुरू करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इंटरनेशनलाइजेशन सपोर्ट करने के लिए जो भी एप्लीकेशंस बनते हैं वो हाइब्रिड एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, दे कंटेन बोथ XML as well as Java। ठीक है, तो we will be following this approach। Then we will make some advanced applications like emails, SMS, camera, sensors and database। ये 5-7 applications हम बनाएंगे। ठीक है,
जिसमें आपकी ये जो तीनों अप्रोचेस आपने सीखी हैं ये इम्प्लीमेंट हो के प्रैक्टिस हो जाएगी, आप एकदम फंटास हो जाओगे कि हाँ यार ठीक है, आप अप्रोच समझ में आ गई, इस हिसाब से मुझे प्रोसीड करना है हर बार, ठीक है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दूंगा, आप अपना खुद का एक कस्टम स्ट्रक्चर बनाओगे, आई अप्रोच टू एनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन दिस वे, ठीक है। वो कॉमन स्टेप्स होंगे जो आपको हर बार करने हैं। उसके बाद में जिस टाइप की एप्लीकेशन है उसकी 3 लाइन उठाई और कोड में फिट कर दी, एप्लीकेशन एसएमएस के लिए हो गई, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर बनाया, कैमरे की 3 लाइन ऑफ कोड उठाई, लगा दी, कैमरे का एप्लीकेशन तैयार। फिर तुम्हारा स्ट्रक्चर है, सेंसर की 3 लाइन उठाई, लगा दी और तुम्हारा सेंसर का एप्लीकेशन तैयार, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट अप्रोच फॉर प्रोग्रामिंग। आपने देखा होगा, कभी सोचे आपने कभी प्रोग्रामिंग करते समय अगर आप किसी एरर की जगह पे फंसे हो और आपने गूगल पे सर्च किया हो तो सिर्फ 3 या 4 लाइन का कोड रिटर्न में मिलता है, स्टैक ओवरफ्लो पे या कहीं पे भी वो सिर्फ 3 लाइन आपको दिखा कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बाकी चीज नहीं करते। जिन यूजर्स को वो स्ट्रक्चर नहीं मिलता है ना, वो उन 3 लाइंस को यूज नहीं करता, वो सोचते हैं यार पूरी इन्फॉर्मेशन ही एम्बिगुअस इन्फॉर्मेशन। स्टैक ओवरफ्लो का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके पास आपका स्ट्रक्चर है, बस आप ये 3 लाइन उठाओ और लगा दो जहां पे काम हो जाएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अप्रोच कि हाउ पीपल इन द वर्ल्ड आर कम्युनिकेटिंग फॉर सॉल्विंग दिस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ओके। तो वो अगर एक बार आप समझ गए तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर हेल्प इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ओके। हम लोग जैसे मान लो मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, 2 साल हो गए मुझे प्रोग्रामिंग करते हुए एंड्रॉइड, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे एपीआईज नहीं रखे, मैंने अप्रोच समझी कि लोग कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, हाउ दे आर इंटरैक्टिंग, कि वन इज इन यूएसए, अदर वन इज एट यूके, थर्ड वन इज एट ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ वन इज एट इंडिया, दे ऑल आर कम्युनिकेटिंग इन अ प्लेन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, और वो सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे हैं, सबके अपने अपने अप्रोचेस अलग अलग हैं। तो ऐसी कौन सी सेंट्रल अप्रोच है जो ये सब लोग फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू ये सारे कम्युनिकेट करते हैं कि ठीक है अगर आपकी ये प्रॉब्लम है आप ये डालो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो जो अप्रोचेस मैंने समझी, मैंने उन अप्रोचेस को इन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये कोई स्टैंडर्ड अप्रोचेस नहीं, ये मैंने खुद अपने हिसाब से नाम दिए, जावा अप्रोच, एक्सएमएल अप्रोच, हाइब्रिड अप्रोच। दिस इज नॉट अ फिक्स्ड डोमेन कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता, बट ये अप्रोचेस हैं हमारी कस्टमाइज, जिसके थ्रू हम कोई भी एप्लीकेशन बनाना प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड देन फाइनली वी विल हैव देम ऑल, ओके। एप्लीकेशंस, डेटाबेस, मोबाइल फोन, एवरीथिंग। हैकिंग का मतलब क्या है? We have that correct piece of information so that we can change the program behavior, okay? And I will, अगर टाइम ने अलाउ किया और टाइम हुआ तो मैं आपको एक ऐसा हैक दिखाऊंगा कि जिसमें किटकैट छोड़ के जो नए वर्जन आए हैं किटकैट का, उसे छोड़ के जितने भी एंड्रॉइड की मोबाइल डिवाइसेस हैं, एवरी डिवाइसेस बोलता है तो compromise your database, to compromise your contacts, mails, emails without any root permissions, ठीक है। यानी आपको रूट होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आईफोन तो और भी आसान है, वो तो सी पे चलता है, सी ऑब्जेक्टिव सी, वो इसलिए है क्योंकि आप ऐसे सोचते हो ना कि वहाँ से एप्लीकेशंस घूम के आती हैं, डायरेक्टली इंस्टॉल होती हैं, आप डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर सकते हो आईफोन के ऊपर। तो ये बात है बिल्कुल सही बात, लेकिन मान लो मेरे पास एक ऐसा बाईपास चेक है कि मैंने जब iOS स्टोर के ऊपर अपना एप्लीकेशन डाला तो वो वल्नरेबल था, उनका बाउंसर भी उसे चेक नहीं कर सकता कि क्या है कोड, क्योंकि बाउंसर्स भी जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो DNS की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगर मैंने किसी और का वायरस यूज किया है जो कि ऑलरेडी डिटेक्टेड है वर्ल्ड में, उसे अपने कंप्यूटर में अपनी एप्लीकेशन में डाल के अगर अपलोड किया है तो इट विल बी डिटेक्टेड। बट अगर मैं कस्टमाइज खुद कोड कर रहा हूँ, उसको अपने हिसाब से घुमा फिरा के कि कहाँ से मैंने उठाया कहाँ दिया, तो ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बाउंसर वोंट अंडरस्टैंड कि इसमें क्या लिखा है लड़के हैं। यानी मैं किसी और भी DLL यूज करने के बजाय अपनी खुद की DLL बनाऊंगा, अपना खुद का फंक्शन जनरेट करूंगा और उसके हिसाब से अपना काम पॉइंटर्स मान लो, दे ओनली वांट दैट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में शेल चाहिए, मतलब रिटर्न पॉइंटर के एड्रेस पे वो ब्लॉक का एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आपका एक्सपोर्ट शेल का लिखा होगा, कमांड प्रॉम्प्ट का या फोन के शेल का, एंड दैट शेल शुड बी ट्रांसफर्ड टू द रिमोट कंप्यूटर। बता दूंगा कैसे होती है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत आसान काम है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, शुरू करें। सो लेट्स प्रोसीड टू, फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक द एंड्रॉइड बेसिक्स पार्ट, ठीक है, कि आपका क्या अवेयरनेस है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ
This is going to be the device which we will be using for testing of our Android applications. Okay, this is my Froyo device. ये मेरी Froyo device है. इसके ऊपर मैं अपनी application testing करूँगा. This is basically my phone. ये है मेरा phone. फ़ोन के ऊपर जो भी है वो सारी टेस्टिंग करूँगा मैं. अभी डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा. इससे उसी जगह पे रुक गया है. ठीक है. साथ में we will be using BlueStacks. हम BlueStack यूज़ करेंगे. तो आज आपका ये काम है. आज आप लोग घर जाएंगे और BlueStacks इंस्टॉल करना है. ठीक है इंस्टॉल. ठीक है. जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग BlueStacks करें. ठीक है. और आप सभी लोगों के पास मोबाइल डिवाइसेज हैं. ठीक है. तो आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में. Emulator. Yes, it is the. किसके? उसके अंदर कैसे काम करेंगे मैं बताऊंगा ना कैसे काम करेंगे. अरे क्यों टेंशन लेते हो यार. देखो ठीक है, चलिए देखते हैं. आपका सारा मैं मिथ कहूँगा, मिथ जितने भी मिथ है ना वो सारी बदल जाएगी. चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे. I'll be using Notepad for explaining the concepts to you. Okay. Whenever I use this is a help for you. Okay. Whenever I use this is a command which you have to execute. Okay. With local user permission, local permissions. ठीक है. And whenever I use this, so this is a command with correct syntax. ये भी एक command है. And you have to execute this with administrator permissions. Okay? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. 3 चीज़. जब भी मैं हेल्प लिखूंगा उसके आगे डबल स्लैश लगाऊंगा. जब भी मैं कोई करेक्ट सिंटेक्स के साथ कमांड करूंगा, केस सेंसिटिव आपको बिल्कुल सेम लिखनी है. जब भी मैं कमांड लिखूंगा you feel it like yes it is case sensitive as well as it is the correct syntax. ठीक है. वही सिंटेक्स फॉलो होगा. दैट विल बी एन एग्जीक्यूटेबल सिंटेक्स. ठीक है. जब भी मैं कोड लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो कोड भी मैं आपको इससे रेफर करूँगा. ठीक है. दैट पार्ट इज गोइंग टू बी द कोड. डबल कोट्स लगाऊंगा, कोड लिखूंगा. टेस्टिंग तो हम उसके अंदर करेंगे, अपने आईडीईज के अंदर करेंगे, प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे. बट रन करने से पहले मैं कभी कभी जब आपको कोड समझाऊंगा तो जब भी मैं डबल हैश यूज़ करूं तो समझ लीजिएगा कि ये करेक्ट सिंटेक्स है इनिशियलाइजेशन का या कंस्ट्रक्शन का. ठीक है. एक मेथड. चलिए देखते हैं. कन्वेंशंस समझ में आ गए क्या चीज़ है. दिस इज गोइंग टू बी अवर कन्वेंशंस विच आई विल बी फॉलोइंग. ओके. आफ्टर दिस कन्वेंशंस नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. लेट्स हैव अ अवेयरनेस चेक. Okay, awareness check. Tell me, what is Android? What do you mean by Android? One by one. Yes. Which operates a phone. It is a operating system. Okay. And what do you want to say? It is a Linux-based operating system. x86 based. हाँ ठीक है. x86 बेस क्योंकि वो कई डिवाइसेस सपोर्ट करता है. x86 MIPS एंड योर ARM. ठीक है. मेजर इट वाज क्रिएटेड फॉर ARM, देन फॉर x86 एंड देन द थर्ड फॉर MIPS. तीनों आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है. ठीक है. चलिए आगे और बताइए. आप बताइए क्या है एंड्रॉइड. व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एंड्रॉइड? हाँ आज के दिन का प्रोडक्ट है. जो वर्ड यूज होता है बेसिकली रोबोट जो इसे होते हैं सबके लिए ड्राइवर यूज होता है. यस इट इज समथिंग कि ये जो हम काम करना चाहेंगे वो हमारा काम है. हाँ so it's like operating system. ये चीज. Yes, very correct, very correct. Droid stands for
नॉट अ वोवल आई गेस। तो एंड्रॉइड का क्या मतलब है, वैसे ये तो इसका आंसर कोई भी नहीं दे सकता, मैं बताता हूँ कि एंडी रूबिन इज द डेवलपर ऑफ द प्रोग्राम। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्होंने बनाया था उनका नाम था एंडी रूबिन, रिच माइनर, क्रिस वाइट, ठीक है। ये 3-4 लोग थे, ये 3-4 लोग थे जिन्होंने बनाया था। देयर वर 4 पीपल, ओके। So Andy Rubin was the chief developer of this Android program. So it was Andy's robot, okay, known as Android. Andy plus Droid becomes Android. Andy's robot. Okay? Andy Rubin was the chief programmer for this. There was another one, Rich Miner, Chris White. Okay. ये थे, क्लियर। दीज वर द डेवलपर्स। आज भी एंड्रॉइड के साथ में एसोसिएटेड है और इनकी अपनी अपनी खुद की कंपनियां, ठीक है। एंडी रूबिन की कंपनी है, उसका नाम है डेंजर। क्या नाम है? डेंजर, ओके। दे डेवलप ड्राइवर फॉर कैमरास, कैमरा के लिए और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए ड्राइवर्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझ में आ गया एंड्रॉइड किसने बनाया? Who developed Android? Andy Rubin. Who developed Android? It was developed by Andy Rubin. Okay? चलिए आगे चलते हैं। Andy Rubin, Rich Miner, Chris White. Okay? इन तीनों लोगों ने बनाया। But Andy Rubin is the chief developer, तो उसी का नाम। Okay? चलिए देखते हैं आगे। बताइए, when was the Android operating system first developed? 2000? No. पहली बार डेवलप कब हुआ था? डेवलप हो गया था 2003 में, 2003, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड इन 2003। Yes, Google purchased it in 2005. Google ने परचेज कैसे कर लिया था ये एंड्रॉइड? इसकी एक छोटी सी कहानी है। हाँ क्या कहा थी? हाँ, द थिंग इज, जब एंडी रूबिन और ये रिच माइनर डेवलपमेंट कर रहे थे, दे वर नॉट एसोसिएटेड टू गूगल, ओके। ये 4 लोग थे, अपना खुद का काम करते थे। दे स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ कैमरा ड्राइवर, ठीक है। उन्होंने पोर्टेबल कैमरा डिवाइसेस के लिए ड्राइवर बनाना शुरू किया, ठीक है। जब उन्होंने ड्राइवर बना लिया तो उन्होंने देखा यार, दे वर वेरी नॉर्मल पीपल, दे वर लोअर मिडिल क्लास पीपल, पैसे की प्रॉब्लम थी उन लोगों को, ठीक है। सारे बट प्रोग्रामर्स थे अच्छे। जब उन्होंने प्रोग्रामिंग शुरू की, कैमरे के लिए ड्राइवर्स बनाए। जब ड्राइवर्स बन गए तो उन्हें लगा यार कैमरे कौन खरीदता है आजकल, nobody is taking, nobody is purchasing cameras. So they thought कि why don't we change some of the contents of this driver so that it is supported by multiple more sensors, ठीक है। कुछ नए सेंसर्स को सपोर्ट कर सके, ठीक है। कौन कौन से सेंसर्स? एक्सेलरोमीटर यानी ग्रेविटी सेंसर, ठीक है, नियर फार सेंसर, मोशन लोकेशन सेंसर, ठीक है। लाइट वो प्रॉक्सिमिटी है, नियर फार, ठीक है। इट इज़ नोन एज, वो जो बंद होती है ना लाइट, इट इज़ अ नियर फार सेंसर, प्रॉक्सिमिटी कहते हैं उस सेंसर, ठीक है। एक्सेलरोमीटर हो गया ग्रेविटी एंड मूवमेंट कि आप किस तरफ को मूव कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ में हो गया नियर फार का, जो हो गया आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। लोकेशन आप मूव कर रहे हो उसके लिए ये सेंसर हो गया, कौन सा? जीपीएस सेंसर। आजकल तो हर्ट सेंसर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ड्राइवर बनाया जो मल्टीपल सेंसर्स को सपोर्ट कर सके, ठीक है। जब उनका वो सक्सेसफुल ड्राइवर बन गया तो उन्होंने सोचा कि यार जब ड्राइवर बन गया मेरा प्रॉपरली, तो मैं इसको फ़ोन के ऊपर चला देता हूँ, फ़ोन के ऊपर सेंसर्स लगा दो और फ़ोन के लिए दे दो। उस केस में उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया कि हम लोग मोबाइल कैमरे के लिए ड्राइवर बना रहे हैं, लेकिन फाइनली दे केम अप विद अ सोल्यूशन कि यार जब सेंसर्स कनेक्ट हो गए तो उन्होंने लिनक्स का कर्नल यूज़ किया। कर्नल के अंदर उन्होंने ये सारे ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर दिया और उनका खुद का नया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो गया, ठीक है। तो उन्होंने हार्डवेयर डिवाइस बनाई, उसमें 4 सेंसर लगाए। 4 सेंसर लगाने के बाद उन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर डाल दिया और फ़ोन स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है। यानी क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब इन्होंने बनाया तो इट वाज डेवलप्ड फॉर अ फोन। लिनक्स का कर्नल था, कर्नल के अंदर
ड्राइवर्स नए अपडेटेड थे जो नए हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। वो हार्डवेयर कहाँ पे डाले जा सकते हैं? कैमरे में कभी देखा जीपीएस लगाओ, प्रॉक्सिमिटी लगी हो या एक्सेलेरोमीटर कंट्रोल लगाओ, नहीं, ये सब चीजें फोन के अंदर पॉसिबल थी। गेम्स खेलने के लिए एक्सेलेरोमीटर, ठीक है, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, बैटरी बचाने के लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, ठीक है ना, और लोकेशन ट्रैक करने के लिए आपकी यूजर कहाँ पे है, मोबाइल का जीपीएस सेंसर हो गया। 2003 में भी हम काफी डेवलप थे, बहुत सारी चीजें थी, कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग 20 साल हो चुके थे आए हुए, ठीक है, मतलब 10-12 साल हो चुके थे जावा प्रोग्रामिंग आए हुए, लोग प्रोफेशनल हो गए थे, 10-12 साल बहुत होते हैं, है ना। तो फिर उन्होंने उस चीज को बना लिया। जब उन्होंने बना लिया तो ये ऐसी प्रॉब्लम हुई इनके पास, रिच माइनर जो था, क्योंकि ऐसा काम कर रहे थे लोग जिससे इनको सैलरी तो कहीं मिलती नहीं थी, किसी कंपनी में तो थे नहीं, फ्रीलांस डेवलपर्स थे, पैसा नहीं। तो एट दैट टाइम ही रैन शॉर्ट ऑफ मनी, उसके पास पैसे की प्रॉब्लम हो गई, पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म होने की वजह से उसका एक दोस्त था जिसने उसको 10,000 कुछ रुपए मान लो, डॉलर्स मान लो, जो भी किसी रुपये में छोटे से अमाउंट में उसने कहा कि देख तू पैसे ले ले और ये जो सॉफ्टवेयर तू बना रहा है वो मुझे दे दे। तो ही परचेज दैट सॉफ्टवेयर, उसने उसको पैसा दे दिया और वो ड्राइवर सेट उसने उससे ले लिया और सीधा जाके वो ड्राइवर सेट उसने गूगल को बेच दिया, ठीक है, गूगल के साथ में एसोसिएट, गूगल ने परचेज कर लिया उस प्रोडक्ट, ठीक है। गूगल ने बहुत कम उस पे, मतलब जब इसने कम पैसे में उससे खरीदी और उसमें उसको जितने भी अमाउंट में बेचा, आई डोंट नो द करेक्ट फिगर, आपको इंटरनेट पे जाके सर्च करना, देन गूगल गॉट द कॉपीराइट्स फॉर द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जब गूगल ने उसे परचेज किया तो गूगल ने सोचा यार गूगल एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गूगल वाज अ वेरी बिग कंपनी, तब भी जो सर्च इंजन था वो बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक है। उन्होंने परचेज किया, उन्होंने सोचा कि ठीक है, जब ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा तैयार है तो इसलिए इंटरफेस बना दो, ऊपर से इसका एक अच्छा सा इंटरफेस बनाओ और मोबाइल फोन में डालकर रिलीज करो, ठीक है। तो उन्होंने अलायंस किया, ओपन हैंडसेट अलायंस, एक कम्युनिटी थी उस टाइम पे जहाँ पे मोटोरोला के, गूगल के, बहुत सारे अलग अलग मोबाइल डेवलपमेंट कंपनीज की पूरी एक एसोसिएशन, जितने भी मोबाइल डेवलपर्स थे अलग अलग कंपनियों के, वो सारे वहाँ पे इंटरैक्ट करते, ठीक है। Google was also a member of this Open Handset Alliance. उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को Open Handset Alliance को दिया, ठीक है, कि आप लोग अब इसके ऊपर इंटरफेस डिजाइनिंग करो, इसका एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो और एक नया मोबाइल फोन रिलीज करो, ठीक है। तो 2005 में जब गूगल ने खरीदा, Open Handset Alliance को दिया, तो पहला प्रोडक्ट इन्होंने 2007 में इट हैज बीन रिलीज्ड, दैट वाज द फर्स्ट रिलीज, ओके, डेवलपर रिलीज था ये, डेवलपर रिलीज ऑफ एंड्रॉइड ओएस, ठीक है। इसका नाम था एंड्रॉइड 1.0। तब नेमिंग कन्वेंशंस नहीं थे एंड्रॉइड, ठीक है। पहला वर्जन जो आया दैट वाज 1.0। दिस 1.0 मींस दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच इज अवेलेबल, ठीक है। चलिए, जब ये काम हो गया, उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए, ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलपर्स ने अंडरस्टैंड किया कि क्या कोड लिखा है, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग की, टेस्टिंग वगैरह करने के बाद पूरा सब सामान बनाने के बाद 2008 अक्टूबर 22 को फर्स्ट रिलीज हुआ, कस्टमर रिलीज, HTC ने किया। HTC Desire was the very first device who ran Android operating system on it, ठीक है। गूगल करना, गूगल नहीं गलत, तुम चेक कर लिया करो हमेशा ऐसी चीज। तो फर्स्ट रिलीज वॉच HTC Desire, ठीक है। एज फार एज विकिपीडिया इज कंसर्न, एज फार एज विकिपीडिया इज प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन, सो इट इज रिटन दैट HTC Desire मॉडल था जिसने सबसे पहला अक्टूबर 22, 2008 को कस्टमर रिलीज हुआ। मतलब दैट HTC Desire was the device which was available in the market for people to buy and use this Android operating system in 2008, 2008, ठीक है। उसके बाद फिर सैमसंग ने भी डाला, इन्होंने भी डाला, उन्होंने भी डाला, फिर तो एकदम बवाल ही हो गया। 2011 में तो ऐसा हिसाब था कि एवरीबॉडी वाज गोइंग टुवर्ड्स एंड्रॉइड, ठीक है। 2008 में रिलीज हुआ, 2009 में देयर वाज अ मैसिव चेंज इन परचेज ऑफ दिस एंड्रॉइड डिवाइस। 2010 में इंडिया में आया, 2010-11 में बेहद बिका एंड्रॉइड। अब हम सोचते हैं क्या एंड्रॉइड, आई वाज एट कॉलेज, बच्चे एकदम पागल थे यार, एंड्रॉइड एंड्रॉइड एंड्रॉइड
at that time I was using there was एक LG का फोन था मेरे पास, स्लाइडिंग वाला, बाटा ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके अंदर, ठीक है, और एक वो था, एक छोटा सा फोन था मेरे पास, टाटा वाला, टाटा का फोन क्या था, हेलो वर्जिन मोबाइल, इनका भी ऐसे होते थे, ठीक है, तो I was having that, तो मैं सोचता था यार क्या है ये एंड्रॉइड, व्हाट इज दिस एंड्रॉइड, अब सोचा नहीं था कि यार वी विल बी इनटू अ फील्ड कि हम एंड्रॉइड के ऊपर काम करेंगे और ऐसा सोचेंगे। तो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज वेरी इंटरेस्टेड ऑन इट एंड ही वाज अ वेरी नाइस प्रोग्रामर आल्सो। अभी वो लखनऊ में है, उसकी कंपनी है, एक अच्छी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के ऊपर वो लोग काम करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्ली उनका स्कोप एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, दे क्रिएट गेम्स एंड दे क्रिएट यूजर बेस्ड एप्लीकेशंस, तो वो काम करते हैं। तो बट आई एम मोर इनटू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पार्ट में पहले से इंटरेस्टेड था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, सो आई moved to information security and I integrated all the domains, जितने भी मोबाइल की एप्लीकेशंस हैं, विंडोज की एप्लीकेशंस हैं, लिनक्स की एप्लीकेशंस हैं, उन सबका सिक्योरिटी पार्ट मैंने कंज्यूम कर लिया, मैंने उसको अपना रिसर्च फील्ड बना दिया कि आई विल बी डूइंग रिसर्च एंड आई विल बी लर्निंग ऑन दिस पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है, ओके। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ योर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सोचो नॉर्मल आदमी थे, कुछ बनाना शुरू किया, बेसिक कोड्स लिखे, एडिशन किया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो गया, ठीक है। इस जगह पे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, व्हाट बेसिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ये आपको मुझे बताना है। टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया आपका, जो आपने मुझे बताया इंटरफेस, ये तो कोई भी नॉन टेक्निकल आदमी बोल सकता है, फिर आपके एनसी होने का क्या फ़ायदा। इंटरफेस बिटवीन क्या है, यूज़र एंड कंप्यूटर। तुम ये मत बोला करो एंड्रॉइड इज नथिंग बट दिस ऐसा कुछ नहीं है, इट टेक्स यू टू अ नेगेटिव अप्रोच, नहीं ये नहीं है, लेकिन ये है, तो दैट डजंट लुक गुड एज फार एज अ टेक्निकल पर्सन इज कंसर्न्ड। You always start with what it is. Never start with what it is not. You tell me, you define me what is an operating system, what does it contains? How does it, you define me in technical terms what is an operating system and what all it has. So operating system is a क्या होता है? Certain functionalities like memory management, process management, very nice, device management, very nice, memory management, memory management बताया, और process and device authentication, नहीं authentication the most important part is this, an operating system is used to do these: मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी कहाँ पे मैनेज होगी? रैम इज द मेमोरी, हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज, यूएसबी इज अ स्टोरेज, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ मेन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इज अ हार्ड डिस्क, रॉम, व्हाट इज रॉम? हाँ, रॉम इज अ मेमोरी और स्टोरेज, because it remembers the program, it's a memory, okay। चलिए देखिए, so basically if I talk about memory, you have a RAM and you have a ROM. Are these hardware or software? RAM hardware, RAM ROM hardware या software? Hardware. Are you sure? 100%. पक्की बात है, ठीक है। If you are that confident, tell me what is the type of these hardware? जैसे टाइप ऑफ static and dynamic RAM. RAM is static and dynamic. What do you mean by static and dynamic? Static जो developer के side से भी install होती है। How can hardware understand that you are a developer or you are a user? So static is something which holds its previous value. Static is something which holds its previous value. okay. इसलिए value hold पे रहता है। static is अच्छा, जो से पहले से ही
It is, you can say, types, you can say it may be a volatile memory or a non-volatile memory. Volatile memory is something which remembers, अगर आप restart भी करते हैं machine को, non-volatile. Volatile का मतलब है कि अगर आपने restart किया, all the previous data will be destroyed. RAM is a volatile memory. Non-volatile means it remembers everything. आप रीस्टार्ट करें तो भी उसके अंदर डेटा में रिमेम्बर है, which is your रीड ओनली ROM. ये कहाँ से होती है? मदरबोर्ड के अंदर. ठीक है, जो मदरबोर्ड आप परचेज करते हैं तो उस मदरबोर्ड के अंदर रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कि बेसिक प्रोग्राम, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट, इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑल हार्डवेयर, वो स्टोर करते हैं. ठीक है, प्रॉपर्ली होता कहाँ है? माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होती है. ये माइक्रो कंट्रोलर है. ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर इज अ कलेक्शन ऑफ बेसिक माइक्रो प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज. माइक्रो कंट्रोलर एक छोटी सी चिप होती है जिसके अंदर प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज तीनों चीजें होती है. ठीक है, बट वो आप सिस्टम की रैम और उससे स्टोरेज का मतलब है कि ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए 16 बिट मोड पे, 8 बिट मोड पे वो उसको यूज करता है. पहले 8 बिट मोड होता है, फिर 16 बिट मोड और फिर इट कन्वर्ट्स टू 32 बिट मोड. जब ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइज हो जाता है, इट स्टार्ट्स दैट 32 बिट मोड. ठीक है, चलिए अभी देखते हैं. वॉलेटाइल मेमोरी हो गई, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो गई. ठीक है, इनको हम कहते हैं नैंड फ्लैश. आज की डेट में जो डिवाइसेस यूज होती हैं उन्हें हम कहते हैं नैंड फ्लैश मेमोरी. ठीक है, क्या है? नैंड फ्लैश. फ्लैश मेमोरीज होती है, जो रैम रोम होती है, वी कॉल इट एज फ्लैश मेमोरीज. ठीक है, फ्लैश क्यों? क्योंकि हम फ्लैश कर सकते हैं. फ्लैश का मतलब क्या होता है? यू कैन इंसर्ट डेटा, यू कैन डिलीट डेटा, यू कैन वॉश डेटा. ठीक है, वैसे इसको हम कहते हैं EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. EEPROM जितनी भी रैम रोम है ये EEPROM के टर्म्स में हम इनको मानते हैं. ठीक है, क्लियर? ये जो जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर. और मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? It may be a program. Program है. Collection of instructions is a program. ठीक है, it's a program. अगर मैंने कहा कि memory management क्या है? It's a program or collection of programs. ठीक है, what they will do? They will operate these hardware devices, RAM, ROM, NAND flash, EEPROM. ये सबको operate करेगा. ठीक है, क्या? ये devices हो गई. डिवाइस को क्या चीज ऑपरेट करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा क्या होता है जो डिवाइस को ड्राइव करता है? जैसे वो सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ड्राइवर्स. ठीक है, वी कॉल देम एज ड्राइवर्स. आपकी यूएसबी लगाई, क्या करते हैं? सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल होता है. कोई नया हार्डवेयर लगाता है, सबसे पहले क्या होता है? ड्राइवर इंस्टॉल होता है. यूएसबी लगाई, ड्राइवर इंस्टॉल होगा. ट्रांसलेट लगाई, ड्राइवर इंस्टॉल होगा. कैमरा कनेक्ट किया कंप्यूटर से, ड्राइवर इंस्टॉल होगा. That driver is a program which is written in C or C++ which drives your hardware. ये जितने भी हार्डवेयर लगे हैं इन सबको ड्राइव करने के लिए क्या है? ड्राइवर्स. वो ड्राइवर्स करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट. तो इस डिवाइस के लिए जो प्रोग्राम लिखा हुआ है जो उसके इंटरनल मेमोरी को मैनेज करता है तो मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है, ड्राइवर्स कहते हैं. ठीक है, इसके साथ में प्रोसेसर. प्रोसेस मैनेजमेंट कौन सी डिवाइस करेगी? बताइए. प्रोसेस मैनेजमेंट कौन सी डिवाइस करेगी? यू कैन कॉल इट एज अ प्रोसेसर. आप इसे प्रोसेसर दो. ठीक है, क्या बोलिए? प्रोसेसर. प्रोसेसर क्या है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? प्रोसेसर. 4i5, 4i7, 420, ये सब क्या है? क्वाड कोर. व्हाट इज दिस? एक छोटा सा ऐसा आता है प्लगेबल, मदरबोर्ड के ऊपर प्लग कर देते हैं आप, उसे हम प्रोसेसर कहते हैं. हार्डवेयर. हार्डवेयर भी डिवाइस है. उस डिवाइस को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? What do you want? What do you need to run a device? इधर ड्राइवर. ठीक है, ड्राइवर चाहिए. नीड गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, टाइपोस के लिए माफ कर दीजिए. ठीक है, ड्राइवर्स. ओके, सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन ऑपरेटिंग सिस्टम यू हैव इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइवर्स. सबसे पहली चीज़ ये. ठीक है, ड्राइवर्स कौन से? ड्राइवर्स की 4 फिक्स्ड कैटेगरीज हैं.
ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, फाइल सिस्टम ड्राइवर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, सिस्टम कॉल्स। ये चार चीजें होती हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? अ टेक्निकल पर्सन से एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम ड्राइवर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स एंड सिस्टम कॉल्स। आप HLN में प्रोग्राम लिखते हो, HLN से सिस्टम कॉल होती है, सिस्टम कॉल होती है, सिस्टम कॉल आपके डिवाइस ड्राइवर को कॉल करती है और डिवाइस ड्राइवर आपके डिवाइस को रन करता है, वो आउटपुट रिटर्न करता है, ड्राइवर उस आउटपुट को रिसीव करता है, वो इस आउटपुट को सिस्टम कॉल को देता है, सिस्टम कॉल HLN को देता है और HLN आपको डिस्प्ले कर देता है कि ये आ गई आपकी फोटो। आपने अगर फोटो यूज किया, आपने वीडियो यूज किया, ये आ गई आपकी वीडियो, आपने USB लगाई, ये लो ये आपकी USB आ गई, ठीक है, उस हिसाब से कनेक्टिविटी होती है। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? टेल मी। ओके, प्लस अब इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में आपकी आती है, इसके बाद में एक स्टेज हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉपर फाइल सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर सारा फाइल्स एंड फोल्डर्स का एक्सेस होता है। ये फाइल सिस्टम ड्राइवर्स और ये फाइल सिस्टम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये फाइल सिस्टम है, जैसे आपका वो हो गया C ड्राइव, ठीक है, और अगर लिनक्स की मैं बात करूं तो स्लैश रूट डायरेक्टरी, ठीक है। विंडोज़ में क्या होता है? अगर विंडोज़ में मैं बताऊं, इन विंडोज़ सबसे पहले आपके पास ड्राइव होती है, फिर फोल्डर होता है, ठीक है, फिर फाइल होती है, ठीक है, ये प्रोसेस है। बट इन लिनक्स मशीन्स, जो कि एंड्रॉयड मशीन है, लिनक्स में क्या होता है? लिनक्स में यू ओनली हैव अ डायरेक्टरी, सबसे पहले डायरेक्टरी होती है, फिर आपके पास फाइल होती है, ठीक है। विंडोज़ के अंदर इन्होंने इस स्लैश को इससे रिप्लेस कर दिया, इससे, ठीक है। इस स्लैश को हम क्या करते हैं? IFS कहते हैं, हाँ, IFS कहते हैं। IFS का नाम होता है फाइल सेपरेटर, इंटीग्रेटेड फाइल सेपरेटर, ठीक है। विंडोज़ में विंडोज़ IFS फाइल सेपरेटर इसको कहते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होती है, स्पेस इज़ द फाइल सेपरेटर, ठीक है, लेकिन आप जो फाइल सिस्टम का जो सेपरेटर होता है वो विंडोज़ में ये होता है और लिनक्स मशीन्स में ये होता है। दिस इज द डायरेक्टरी फाइल एंड ड्राइव सेपरेटर, ठीक है, क्लियर? आपको एक डायरेक्टरी के अंदर जाना है, आप ऐसे स्लैश लगाओगे, आप उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाओगे, ठीक है, क्लियर हो गया? तो विंडोज़ के अंदर इंटीग्रेटेड फाइल सेपरेटर कौन सा होता है? बैकस्लैश, और लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। चलिए ऊपर वाले साइड से हम डिफाइन करते हैं कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, ठीक है। नीचे वाले से मतलब ये जो है ना, ऊपर वाली साइड से हम बताते हैं कि बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, ओके, क्लियर? तो ये हो गया। इसके बाद में क्या है? फाइल सिस्टम के बाद में एक और चीज़ आती है, द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या आता है? द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वी कॉल इट एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। अगर आप विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में होता है explorer.exe प्रोग्राम, जो आपका GUI डिज़ाइन करता है, और लिनक्स में जो होता है, लिनक्स में होता है X विंडो मैनेजर, ठीक है। और एंड्रॉइड में क्या होता है? X विंडो मैनेजर ही होता है, ठीक है। उसका जो डेफिनेशन है, X है प्रॉपर्ली X विंडो मैनेजर ही, बट ये हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग वर्जन्स के हिसाब से, ठीक है। किटकैट का अपना नया GUI है, उससे पहले जेलीबीन का अपना नया GUI था, उससे पहले उसका नया GUI था। फंडामेंटल वही है, ठीक है। हर वर्जन में कुछ नए चेंजेस हैं, कोई साइड से जाते हैं, कोई ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, अलग अलग फीचर्स, किसी में कलर कॉम्बिनेशन चेंज है, तो दैट इज अ चेंज इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम यहाँ पे उनको वी रिप्रेजेंट देम विथ एंड्रॉयड वर्जन्स, ठीक है। हर एंड्रॉयड वर्जन में क्या क्या चेंज होता है? फाइल सिस्टम और GUI चेंजेस होते हैं, और इसके साथ में कर्नल चेंजेस होते हैं। कर्नल में कोई नया हार्डवेयर लगा दिया, उस नए हार्डवेयर पे ड्राइवर लिख दिया, वो ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दिया, उसके हिसाब से फाइल सिस्टम चेंज कर दिया, और उसके हिसाब से नया GUI बना दिया, बन गया नया एंड्रॉइड वर्जन।
समझते नहीं हो, आप बड़ी एसोसिएशन से जुड़े हुए नहीं हो, इसलिए आपको लगता है कि यार ये बहुत बड़ी तोप है, वरना सिर्फ 2 मिनट का काम। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा एंड्रॉइड वालों ने जो काम किया है वो काम करने के लिए शायद उन्होंने ड्राइवर्स लिखे, इट इज अ वेरी नाइस थिंग, और मोबाइल फोन में ड्राइवर्स का सपोर्ट किया, उसके डिवाइसेस का एक्चुअली सपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे अगर जनरली देखो, जैसे बैक ट्रैक आता है, काली आता है, और उबुंटू आया, ठीक है, फेडोरा, ये मिनी ओएस, लाइम ओएस, कितने ओएस रोज आते हैं। ठीक है, एडी ओएस और पता नहीं फलाने ठिकाने बहुत सारे आते हैं, और एक दिन का काम है, वन डे, इट विल टेक ओनली 1 day to create an operating system, not from the scratch, क्योंकि कर्नल तो वो कहीं और से यूज़ करते हैं, लिनक्स कर्नल यूज़ करते हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ। तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं यहाँ से, दिस पार्ट इज नोन एज कर्नल पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कर्नल, इसको हम कहते हैं कर्नल। ठीक है, क्या कहते हैं? दिस इज कर्नल। कर्नल इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम ड्राइवर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स एंड सिस्टम कॉल्स। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज समथिंग विच इज अ कलेक्शन ऑफ operating system. It is a collection of kernel plus file system plus your geo. ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कर्नल का नाम सुना, लोग कहते हैं कर्नल इज अ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट डू वी मीन बाय बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम? ये तो जनरल टर्म होगा। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया कर्नल इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम ड्राइवर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स एंड सिस्टम कॉल्स। ठीक है, तो जब लिनक्स का कर्नल यूज किया इन्होंने, तो एंड्रॉइड में ऐसा क्या नया किया कि उनको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मान लिया गया? उन्होंने नए जो ड्राइवर्स लिखे वो उन्होंने इस ओपन सोर्स कर्नल के साथ में इंटीग्रेट किया। जो ऊपर डिवाइस ड्राइवर्स का सेक्शन है उसमें उन्होंने नए सेंसर्स के ड्राइवर्स और वो ड्राइवर्स अटैच किए, इसलिए क्या बन गया? ये नया कर्नल बन गया, एंड्रॉइड कर्नल, लिनक्स कर्नल बट मॉडिफाइड। ठीक है, ये काम किया किसने? अलग अलग मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, LG ने अपना अलग किया, सैमसंग ने अपना अलग किया, HTC वालों ने अपना अलग किया। ओपन सोर्स लिनक्स कर्नल यूज किया क्योंकि वो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अपनी खुद की चिप्स डिजाइन की, उन्होंने चिप्स को अपने स्मार्टफोन के ऊपर ऐड किया, उन्होंने उसमें ड्राइवर लिखा, वो ड्राइवर उन्होंने लिनक्स कर्नल पे डाल दिया और उस कर्नल के ऊपर उन्होंने एक नया इंटरफेस डिजाइन किया और अपने फोन में डाल दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिवाइसेस उनको बनानी आती थी, लिनक्स कर्नल यूज किया, ड्राइवर ऐड किया, GUI ऐड किया, डाल दिया और बन गया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्लियर? ये है पूरी प्रॉपर कहानी की ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलते हैं और क्या काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम ड्राइवर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, सिस्टम कॉल्स, और इन्हीं के अंदर सब चीजें हो जाती हैं। तो कर्नल, अब ये जो डिवाइस है इसके अंदर आपका प्रोसेसर भी आ गया, कर्नल भी आ गया, I2C डिवाइसेस आ गई, USB डिवाइसेस आ गई, इंटरनल मदरबोर्ड के ऊपर जितने कंपोनेंट्स, जितनी डिवाइसेस हैं उन सबकी इनिशियलाइजेशन आ गई, उन सबकी डिवाइसेस के ड्राइवर्स आ गए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल। इसलिए ऐसा होता है कि आप मदरबोर्ड कहीं और से खरीद के लाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नया लेते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब इनिशियलाइज होता है वो आर्किटेक्चर के हिसाब से उन डिवाइसेस को रीड कर लेता है। ठीक है, इसलिए फिक्स होता है कि आर्किटेक्चर कैसा है। अगर इंटेल आर्किटेक्चर है तो उसमें कंपोनेंट्स की प्लेसिंग एक फिक्स जगह पे, उन सबका एक फिक्स मेमोरी एड्रेस है कि बूट लोडर नहीं, मदरबोर्ड के ऊपर जो ROM है वो इस जगह पे। ठीक है, सिग्नल जाएगा, ROM इनिशियलाइज होगी, उसका ऑफसेट जो मेमोरी एड्रेस है उसके अंदर वहां पे एक छोटा सा हेक्स का कोड लिखा होगा जो एग्जीक्यूट करेगा कंप्यूटर। ठीक है, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, हर आर्किटेक्चर में फिक्स होता है। ARM का अपना अलग है, इंटेल का अपना अलग है। ठीक है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि ARM के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना है वो इंटेल पे नहीं चलता, इंटेल के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना है वो ARM पे नहीं चलता, क्योंकि वो डिवाइसेस की लोकेशन ढूंढता है, डिवाइसेस की लोकेशन मिलती नहीं है तो प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं पाता, वो वहीं पे आएगा। तो इसके दिखाता है यार ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल रहा है, सपोर्ट। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर फंडामेंटल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? अब देखते हैं एंड्रॉइड में ऐसा क्या खास था जो विंडोज़ और इन सब में नहीं था, जो ये डिवाइसेस को चला नहीं पाए। ठीक है, एंड्रॉइड के अंदर क्या था? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट दे डिड, मैं वैसे अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। इधर से देखते हैं,
मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं। ये आप ओवर द एयर ये वो कैसे आता है अपडेट? ओवर द एयर कैसे अपडेट हो जाता है बताऊंगा, वो भी बता दूंगा यार, ऐसी क्या बात है, बहुत आसान बात है। कैसे हो जाता है, आप पुश कहते हैं, पुश इन कॉन्सेप्ट है। दिस इज बेसिकली एंड्रॉइड मोबाइल स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। जो अभी मैंने आपको बताया वो मैंने आपको क्या बताया, कर्नल के बारे में। व्हाट इज द कर्नल? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स। देखो यहाँ पे क्या क्या कर्नल है, क्या है, डिस्प्ले ड्राइवर, कैमरा ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर, फ्लैश ड्राइवर, बाइंडर्स, पावर मैनेजर, ऑडियो ड्राइवर्स, वाईफाई ड्राइवर, कीपैड ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, सारे आपने देखे होंगे। ये क्या है, ये किसने लिखी थी? लिनक्स ने लिखी, लाइनस टोरवाल्ड्स ने लिखी। ये सारे ड्राइवर्स का कलेक्शन, ठीक है, उन्होंने बनाए। और क्या होता है कि नई कंपनी जो अपना डिवाइस बनाती है वो उसके लिए खुद ड्राइवर लिखती है, ठीक है। तो ड्राइवर डेवलपर्स होते हैं वो अपनी हर कंपनी का लेवल है। सैमसंग के पास उनके बड़े हाई लेवल के ड्राइवर डेवलपर्स हैं। बहुत छोटा सा नाम है, C++ में 10 लाइन का कोड होता है, लेकिन पता होना चाहिए ना आपको वो लाइन है क्या, कौन सी क्लास यूज करनी है, काम कौन सा है। लोग इसको अवॉइड करते हैं, समझते नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूजन कि है क्या, उनको ओवरऑल स्ट्रक्चर ही नहीं मिलता है, ठीक है। मेन चीज क्या है, ये आपका लिनक्स कर्नल जहाँ पे होती है डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। इसके अलावा और तीन चीजें होती हैं, फाइल सिस्टम ड्राइवर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स एंड सिस्टम पार्ट्स, ये भी अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ऊपर चलते हैं, ये सब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे कुछ और प्रोग्राम्स है जिन्हें हम लाइब्रेरीज कहते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड के अंदर जो खास है, क्या लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर, अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे डेटाबेस के लिए SQLite की लाइब्रेरी है, C प्रोग्राम्स, C++ प्रोग्राम्स रन करने के लिए libc की लाइब्रेरी, ठीक है। कोई भी आप C का कोड लिखो किसी भी ड्राइवर के लिए, किसी भी फाइल सिस्टम के लिए, कुछ भी लिखो, एंड्रॉइड के अंदर सब चलता है। कैसे चलता है, ये libc लाइब्रेरी है जो उसको मिल रही है, ठीक है। SSL की लाइब्रेरी है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। SGL की है, ग्राफिक्स लाइब्रेरी है। OpenGL है, ये भी ग्राफिक्स की लाइब्रेरी है। इसी के थ्रू जो आप ये एनिमेशंस, लॉन्चर्स, कार्ड्स देखते हैं, दे ऑल रन डिपेंडिंग ऑन दिस लाइब्रेरी, ठीक है। OpenGL उन्होंने यूज किया, उसके हिसाब से एनिमेशंस बनाए, OpenGL में OS में डाल दिया और एप्लीकेशन में चला दिया JVM के थ्रू। जावा में जो उन्होंने जो कोड लिखा, उस कोड से उन्होंने इस लाइब्रेरी को कॉल कर दिया विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल्स, ठीक है। ये चीज है, ये दो चीज है। इसके साथ में क्या है, आपके पास ये रन टाइम है, ओ भाई बात नहीं है, ऐसे लोकेशन पे खड़ा हुआ है। देखो ये जो है रन टाइम, रन टाइम में क्या चीज है आपके पास, 4 लाइब्रेरीज हैं और डालविक वर्चुअल मशीन। 4 लाइब्रेरीज कौन सी हो गई आपकी, जिनको हम सिस्टम कॉल कहते हैं। ये होती है 4 लाइब्रेरीज द सिस्टम कॉल्स, कि किस इंस्ट्रक्शन को मैं कैसे समझूंगा, ये यहाँ पे लिखी हुई है एंड्रॉइड रन टाइम। और डालविक वर्चुअल मशीन क्या है, इन्होंने अपना एक नया एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट बनाया, ठीक है। उसका नाम दिया डालविक एग्जीक्यूटेबल, डेक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे विंडोज में exe चलती है ना एग्जीक्यूटेबल, वैसे एंड्रॉइड के अंदर डेक्स चलती है, डालविक एग्जीक्यूटेबल। APK फाइल होती है, APK एक आर्काइव है, उस आर्काइव के अंदर एक डेक्स फाइल होती है जो रन करती है, ठीक है, जिसके अंदर सारे कोड्स होते हैं, ऑल द सोर्स कोड्स आर अवेलेबल इनसाइड द डेक्स फाइल। Those DEX files run on a Dalvik virtual machine, ठीक है। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसे होता है। जावा आप लिखते हो, जावा का जो रन टाइम है तो जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर है। C# लिखते हो, C++ लिखते हो, CLR के ऊपर चलती है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम पे, ठीक है, वो भी एक वर्चुअल मशीन है। एंड्रॉइड में कौन सा है, DEX है, कहाँ चलता है, डालविक वर्चुअल मशीन, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया इसका रन टाइम और गोल लाइन। अब इसके ऊपर एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क्स, फ्रेमवर्क का मतलब इन दोनों जगहों के बीच में यहाँ पर JVM है, क्या है आपका JVM। बेसिकली JVM इज एट दिस प्लेस, रन टाइम जो है ये है आपका जावा वर्चुअल
मशीन पूरा, जिसके अंदर एक डायनेमिक वर्चुअल मशीन लिखी है और कोर जावा की वर्चुअल मशीन की लाइब्रेरीज, ठीक है। वर्चुअल मशीन की लाइब्रेरीज माने सिस्टम कॉल्स, जो जावा की सिस्टम कॉल्स हैं, दे आर रिटन ओवर हियर। दे इंटरैक्ट विद द ड्राइवर्स ऑपरेट द डिवाइसेस एंड दे रिटर्न द वैल्यूज, देन दे अंडरस्टैंड द वैल्यूज अगेन एंड दे गिव दोस वैल्यूज टू द एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। फिर वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एप्लीकेशन में आपको वैल्यूज दिखा देगा, ठीक है। अब एपीआईज क्या है? जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो एप्लीकेशन बनाते हैं, दे वर्क ऑन दिस लेवल, ठीक है, ठीक है। जो और डिटेल प्रोग्रामर्स होते हैं, जैसे मान लो आप जो हार्डकोर और जो प्रोग्रामर्स के रियल डिवाइस बनाते हैं, वो इस लेवल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क्स में। और जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, जिनको बिल्कुल ड्राइवर मैनेजर डिवाइस वगैरह पॉपुलेट करनी सब आता है, वो इस लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन है हार्डकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये है जो फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज बनाते हैं, ठीक है। जैसे मार्क ज़करबर्ग का लेवल हो गया ना, वो लोग इस लेवल पे आते हैं। ये लाइनस टॉरवाल्ड्स का लेवल है, ये मार्क ज़करबर्ग का लेवल है, ठीक है। ये किसका है? ये हम लोगों का है, ठीक है। और ये किसका है? ये अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर और एमसीए के जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी आप किस जगह पे हैं? आप अभी इस लेवल पे, आप सिर्फ एप्लीकेशन चलाते हो, मजे लेते हैं। और इससे भी ऊपर एक लेवल है अनअवेयर लोगों का, जिनको जो यूज ही नहीं करते, ठीक है फोन है ना, ठीक है फोन आता है, फोन जाता है, तो उनके लिए एक सिम्बियन और एंड्रॉइड में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो नाउ यू आर एट दिस लेवल एंड सी यू हैव टू रीच टू व्हिच लेवल? यू हैव टू रीच टू दिस लेवल। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्लियर। तो क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशंस यूज करने के अलावा अब आपको एपीआईज पढ़नी पड़ेगी कि एपीआई को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। एक्टिविटी मैनेजर्स क्या है मैं बताऊंगा आपको, विंडो मैनेजर क्या है मैं बताऊंगा आपको, कंटेंट प्रोवाइडर्स, व्यू सिस्टम, नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, लोकेशन मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, टेलीफोन मैनेजमेंट, पैकेज मैनेजमेंट, ये सब क्या है, आई विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स। जब आप ये कर लेंगे तो इसी लेवल पे आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाएंगी, एप्लीकेशन तैयार हो जाएंगी और वो रन किसके ऊपर होंगी? वर्चुअल मशीन्स के ऊपर रन होंगी। किसकी हेल्प से? लाइब्रेरीज की हेल्प से, ठीक है। आप लाइब्रेरी नहीं बनाओगे, आप एप्लीकेशन के एपीआईज नहीं बनाओगे, ये बनी हुई है। ये हर एंड्रॉइड वर्जन के अंदर अपनी अलग एपीआईज हैं, ये काम एंड्रॉइड डेवलपर्स करके देते हैं, ठीक है। बेसिकली गूगल ये काम करता है, ठीक है। बाकी ये सब काम अलग अलग कंपनीज करती हैं, एस्केलाइट अपना काम करती है, ये अपना करते हैं, वो अपना करते हैं, वो अपना करते हैं, ठीक है। गूगल वाले सिर्फ क्या करते हैं, जो उन्होंने अपडेट किया उसको उठाया और अपने नए वर्जन में अटैच किया, ठीक है। और ये काम डिवाइस के मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, ठीक है। तो गूगल वर्क एट दिस प्लेस एंड एट दिस प्लेस ऑल्सो। बाकी अलग अलग कंपनियां अपना अपना काम करती हैं इसको बनाने के लिए, और जैसे LG है, सैमसंग है, मोटोरोला है, वो सब इस लेवल पे काम करते हैं। समझ गए पूरा? अब ये इमेज देख के समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है प्रॉपर्ली, ओके। वहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इस पूरे का कलेक्शन है, एक लेवल पे एप्लीकेशन चलाता है, उसके नीचे एपीआईज होती है, हम इन एपीआईज को यूज करके एप्लीकेशन बनाते हैं। ये एपीआईज लाइब्रेरीज के थ्रू कॉल होती है, लाइब्रेरीज के थ्रू इनकी एपीआईज लिखी हुई है और चलती रन टाइम के ऊपर, ठीक है। और ये रन टाइम हार्डवेयर के ऊपर चल रहा है, वो हार्डवेयर यहाँ है, ठीक है। ये मेमोरी है, इसके साथ में प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन देता है, डिस्प्ले एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। कर्नल के थ्रू, कीपैड के थ्रू आपने इनपुट दिया, सब काम किया और डिस्प्ले ड्राइवर के थ्रू वापस रिटर्न कर दिया, ठीक है। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर नाउ, ओके। सो नाउ वी आर एक्चुअली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आज का टाइम पूरा हो गया है अपना, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट टुमारो विद द प्रोसेस। आज का बेसिक्स क्लियर है। आप ये जानते हैं कि 32 बिट 64 बिट कंप्यूटर क्या होते हैं, आप ये जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आप वो भी जानते हैं, आप ये जानते हैं कर्नल क्या होता है, आप ये जानते हैं कि ये फ्रेमवर्क क्या है एंड्रॉयड का पूरा प्रॉपर्ली, किस लेवल के ऊपर क्या काम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये जानते हैं कि सैमसंग क्या करती है, गूगल क्या करती है और यूज़र्स क्या करते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपको करना क्या है एक्चुअली, आपको ये काम करना है, ठीक है। ये काम करने का अप्रोच क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेहनत कौन करेगा,
आप करेंगे। करेंगे कैसे? पहले रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे और उन रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करना कहाँ है वो मैं बताऊंगा। रिसोर्सेज ढूंढने कैसे हैं वो आप ढूंढेंगे, ठीक है। जितनी मेहनत करोगे उतने रिसोर्सेज मिलेंगे। इम्प्लीमेंट कहाँ करने हैं वो मैं बताऊँ। क्लियर? समझ गए? दिस इज हाउ वी हैव टू अप्रोच। इज इट क्लियर नाउ? ओके, चलिए, फाइन, वेरी क्लियर। लेट्स स्टॉप।